Taking the brief summary about Linux, when it was created. So the history of Linux, basically Linux was created by the Linus Torvalds in 1991. It is free and open source operating system based on the Unix. Initially developed phase as the hobby product, it was growing into the powerful OS used in the server, desktop, and mobile device as well. So we have seen most probably places Linux is uses. We have iOS in mobile and all the things. Most probably, and we are most probably using the Linux. Windows is very less. So this is the very basic history of the Linux. And next is the boot process. Boot process means ki how will system boot and giving the user interaction sessions. Like we will log in the user and perform any task, perform any command. So basically, this is the process. BIOS basically initialize the hardware and load the bootloader. Second things, MBR bootloader. It means ki load the Linux kernel into the memory. Third one is the kernel. It's initialize the system and mount the root file system. Root file system in the sense ki the man, like in Windows is the C drive and the Linux is the root. It's the same thing. There is all configuration is available related to OS boot, configuration related anything. Init system is the initially user space and services like we will run any command systemctl status firewall D, and firewall D is the system D services. So this is the package which is used for the security purpose. So all the things is available, all services is belongs to system D. And login user is the prompt is the login. So where we have given the username and password. So we will log in inside the server and login can perform any task or execute any command. And this is the structure of the file system in Linux. So main thing is the root directory. Slash is the root directory. Every directory inside that. Like bin. Bin is basically essential the binary of user command. Like I will show you as well as pwd. I'm in bin. I will list here. So we will get all commands which we have to run for any task. You have seen here the complete list of commands here. And second is boot. Slash boot is basically hold the boot files. My system is boot. In that all kernel related information, boot related files. I'll show you that thing also. So this will handle the boot related files. You have seen this virtualization, system B, grub, ENI file, all the thing. Second is DAV. DAV is just like a device, input output device. Like you have USB attached in a system, any other. So that kind of things like any loopback adapter, NMCLI, and TTY is the terminal. So such kind of files is handled by the DAV. ETC is the just for the configuration. Every configuration files handle inside the ETC, like passwd, packaging, OS release. If we will run that cat etc OS release, it will identify which version we are using, Ubuntu, this one, which package, all information given. So etc will cover all the configuration related file. If you have any question, you will stop and ask them. Home is basically related to home directory. It handles the user configuration. Like we will create any user, so it handle all the things. Like in my laptop, there is one user created UIPL, and we have saved lots of configuration, lots of our file in a profile file. Also desktop, laptop, we will save any file on the desktop.
So this is available slash home directory, inside home directory. Lib basic slash lib is the library file. Which is available the system file, actually system library like kernel, JVM, systemd, all library file is available. Slash media, it means ki suppose you have to push the CD or USB, so there you will mount that USB, copy the data, so all that kind of device will be mounted in slash media. Now it's simple, only user information showing, there is no any media is mounted. Rakesh, sorry to interrupt. We can go in Hindi because this is a very basic topic and this is very useful topic. तो हम हिंदी में भी explain कर दीजिए आप तो so that we can. Everyone will understood the Hindi, ना? ऐसा तो Yes, कुछ challenge everyone नहीं है? is able to, yeah, they are able to understand Hindi. And Yeah, this is a fine. good topic and needs, this is something that is very basic and everyone should know. हाँ, है ना? तो definitely. So we will start in Hindi. मुझे नहीं हाँ पता था हाँ, कि ये आप हमें भी ऊपर से दोबारा से आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा डिटेल में इसमें, हाँ तो हाँ, no इट विल बी problem, no गुड. problem. हाँ, No problem. थैंक Bin यू. directory basically will handle the binary command line, like any command, जैसे कि suppose ls-l, we have run this command. So this information, this file available inside the bin directory. If I will run this ls-ltrh, I'll grab it this ls command, so you will find it. This ls false, this may be ls आप देखो. related file है. हाँ, It is finding here. Basically Linux is only the file, there is no directory. इसमें कोई डायरेक्टरी वो नहीं होती है, सब कुछ फाइल में ही होता है. अगर कोई कमांड भी चलाते हैं तो इट मींस कि वो कई फाइल अवेलेबल है तभी हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है. तो अगर हम ls कमांड चला रहे हैं तो इट मींस कि वो कहीं फाइल पड़ी हुई है, तो वो फाइल जो होती है वो बिन डायरेक्टरी के अंदर होती है. ओके. हाँ, जैसे आपने और भी कमांडें चलाई होंगी, जैसे माउंट कमांड चलाई होगी, मोर कमांड चलाई होगी, मे बी जरूरत पड़ी होगी आपको, तो ये सारी कमांडों की जो फाइल अवेलेबल होती है वो बिन डायरेक्टरी के अंदर होती है. बिन डायरेक्टरी. हाँ, सेकंड है बूट डायरेक्टरी. बूट डायरेक्टरी के अंदर फाइलें वो अवेलेबल होती हैं जो बेसिकली बूट सिस्टम को बूट करती है. बूट से रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबल फाइलें होती हैं वो बेसिकली बूट के अंदर होती है. ऑल्सो यू दैट थिंग ऑल्सो एलएस करते हैं सिंपली. जैसे ग्रैब हो गया, ग्रैब के बिना हमारा सिस्टम बूट ही नहीं होगा. तो ग्रैब है यहाँ पे हमारे लैपटॉप पे, तो इसलिए बीएम लाइनक्स करके ये वर्चुअलाइजेशन फाइल है. बट ये हमारे EC2 में अगर हम EC2 क्रिएट करेंगे या वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो वहां नहीं होगी. ENF फाइल ये बायोस से रिलेटेड होती है. तो सारी बूट फाइल हमारी स्लैश बूट के अंदर होती है. डेप फाइल होती है, इसमें डिवाइस फाइल अवेलेबल होती है. हाँ, जैसे कि आपकी MND होगी, TTY किस आप टर्मिनल पे एक्सेस कर रहे हैं इसको, KVM होगी, लॉग फाइल होगी, लूप अडेप्टर हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं. थर्ड है ETC. ETC इज द रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कि जैसे कि हमें अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. सो अपाचे की मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /etc अपाचे, और अपाचे के अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल रखी है वहां पे हम चेंजेस करते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट की हमें एप्लीकेशन पे क्या चीज चलानी है. तो ETC के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइलें होती हैं. पासवर्ड होगी, इट्स रिलेटेड टू पासवर्ड की क्या यूजर इन्फॉर्मेशन है, क्या पासवर्ड है, ये सारी. इसमें बहुत सारी मॉड्यूल्स हो गया, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. DHCP कॉन्फ़िगरेशन, DHCP में लेवल पे हमें कोई चेंजेस करने, तो अगर कोई एप्लीकेशन चेंज इंस्टॉल करते हैं, लाइक अपाचे इंस्टॉल किया हमने या HTTP इंस्टॉल किया, Nginx इंस्टॉल किया, तो उसकी भी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, वो ETC के अंदर ही बनती है. थर्ड इज द होम डायरेक्टरी. होम डायरेक्टरी में हम जो भी यूजर क्रिएट करते हैं उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन होम डायरेक्टरी के अंदर होती है. जैसे कि हमारी सी ड्राइव में, विंडोज में सी ड्राइव होती है, उसके अंदर हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करता है और उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट होता है, डाउनलोड होता है, म्यूजिक, पिक्चर, सारे फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आते हैं जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं.
सो उसी कंडीशन में यहाँ पे भी होता है कि यूजर क्रिएट करते हैं तो ये डिफॉल्ट क्रिएट होता है होम डायरेक्टरी के अंदर, वो अपनी एक होम डायरेक्टरी बनाता है और उसके अंदर जो भी डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं लाइक प्रोफाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर्स होगी, डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो वो एज इट इज क्रिएट करता है, बट इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो होम डायरेक्टरी के अंदर ही रखता है सारी। ये CD UIPL क्या किया था आपने ऊपर? सीडी यूआईपीएल किया था। यूआईपीएल हमारा एक यूजर है जो हमने बना रखा है, सीडी होम के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसने रखी है अपनी आइडेंटिफिकेशन के नाम से। अगर कोई हम यहाँ पे और यूजर बनाएंगे तो वो यूजर जैसे कि ऐड यूजर करेंगे तो उस नाम से इसकी दूसरा फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर आपकी डेस्कटॉप डाउनलोड वो सारा उसके अंदर होगा। अब हमने यूआईपीएल से लॉगिन किया है तो हमें अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो हमारे डाउनलोड में मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे एक टेस्ट यूजर बना दिया उससे लॉगिन कर लिया तो उसमें अगर डाउनलोड उस यूजर के डेस्कटॉप से हम डाउनलोड करेंगे जैसे हम विंडोज में करते हैं तो वहां के डाउनलोड में दिखेगा, जस्ट लाइक दैट। Oh, इसके बाद आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आपका होता है लाइब्रेरी फाइल होती है विंडोज की, ओएस लेवल की, वो सारी स्टोर होती हैं, लाइक सिस्टम फाइल कह सकते हैं हम, जैसे ग्रब हो गया, कर्नल हो गया, जेबीएम हो गया, ये सारी टोटल सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होती हैं। मीडिया इज द रिमूवेबल मीडिया, लाइक हम कोई यूएसबी वगैरह माउंट करते हैं या कुछ करते हैं तो वो इसके अंदर शो होता है हमें। अगर हम यहाँ पे एलएस करके कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे ही दिखेगा वो। एमएनटी के अंदर हम माउंट सिस्टम करते हैं, जैसे कि हमें कोई ईएफएस वगैरह माउंट करना है, कुछ माउंट करना है और हमने कोई पार्टिकुलर पाथ नहीं दिया तो डिफॉल्ट वो इसके अंदर ही माउंट होगा एमएनटी के अंदर। ओपीटी बेसिकली होता है एड ऑन पैकेज की, लाइक हमने कोई अगर एंटीवायरस डालना है या कुछ भी डालना है तो हमारा वो डिफॉल्ट ओपीटी के अंदर जाता है। जैसे कि इसमें इन्होंने क्राउड स्टैक डाल रखा है तो क्राउड स्टैक इन्होंने ओपीटी के अंदर, बिटरॉक भी डाल रखा है इन्होंने, एडब्ल्यूएस वीपीएन क्लाइंट वो हमने डाला हुआ है अपनी जरूरत के लिए, इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट का भी डाल रखा है और जेडिक स्केलर भी ये यूज कर रहे हैं अपना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये बेसिकली सारे, इसमें कुछ भी जो भी इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन वो OPT के अंदर जाएगा, हाँ जो थर्ड अदर पार्टी देन द OS एप्लीकेशन, जो। हाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होंगे जितने भी। हाँ अगर डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जाएगी ईटीसी के अंदर, अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो आपके इधर आएंगे ओपीटी के अंदर, OPT। एडिशनल पैकेज। इसके बाद आता है सीडी एसबिन। एसबिन इज द, बिन था, बिन हमारा हैंडल करता था यूजर कमांड जो हम किसी यूजर से चला सकते हैं, बट एसबिन विल हैंडल इट कि ये ओनली विल रन द रूट और सुपर यूजर से हम ये कमांड रन कर सकते हैं। तो वो बेसिकली बाइनरी हैंडल करता है, ये सारी सुपर यूजर से ही हम चला सकते हैं जितनी भी इसने कमांडें यहाँ पे मेंशन की हैं, एलएस मोड, एलपी इन्फो। सीडीएसआर भी बेसिकली ये हैंडल करता है आपका। राकेश यहाँ पे सॉरी, हाँ 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 बताइए। एक मिनट, यस बिन और बीन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंट यही है कि एसबिन विल हैंडल इट द पैकेज ऑफ रूट लेवल, जैसे कि हमारा रूट यूजर होता है दैट इज द पावर यूजर, विंडोज में वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ओके ठीक है। तो बिन लेवल की जो भी बाइनरीज होंगी वो सुपर यूजर की होती हैं और जो बिन ओनली बिन में होती हैं वो किसी भी यूजर से आप रन कर सकते हो उन कमांडों को, एग्जीक्यूट कर यस, सकते हो फाइलों। यस हाँ बिन में कोई स्पेसिफिक ही कमांड के लिए अलाउ करती होगी ना, जैसे हाँ बिन की। राइट, ओके वो जस्ट लाइक द एडमिनिस्ट्रेटर, अगर हम नॉर्मल अगर हम यूजर बना दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है सुपर लेवल की जो कमांडें होंगी और जो फाइल अवेलेबल है। ओके, बट यूजर को अगर हम सुडो राइट्स दे सुडो, तो वो कमांड हाँ कर तो सकता है। उस केस में भी कुछ यूजर्स कर सकता है, अगर कुछ कंडीशंस है तो उस केस में भी वो नहीं करता है। वो जस्ट लाइक हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी वो कभी हम फेस करते हैं सच काइंड ऑफ थिंग। ओके आफ्टर टेम्परेरी फोल्डर इज हैंडल इट द, लाइक कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है तो उसकी कैसे वगैरह सेव करनी है या फिर कोई सिस्टम लॉगिन सर्विसेज को सेव करनी है तो टेम्परेरी फाइल क्रिएट करता है, इट सेव इनसाइड द बिन टेम्परेरी फाइल। लाइक हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा है तो उसने एक रजिस्ट्री बना रखी है ब्लूटूथ की, बूट हुआ होगा सिस्टम उस टाइम पे कैसे डाल रखी है इसने, पावर प्रोफाइल डेमन्स हमने अपडेट किया है तो उस टाइम पे सिस्टम लॉग किया है तो उस टाइम पे इस तो टेम्परेरी फाइल
वो रिमूव भी हो जाती है ऑटोमेटिक, सर्विस लॉग आउट की या सर्विस बंद की जरूरत नहीं है, तो इट विल क्लीन अप ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। ओके ओके। यूएसआर से रिलेटेड आपकी जैसे गेम वगैरह हो गया, बिन वगैरह हो गया, वो सारी चीजें यूएसआर के अंदर आती हैं, लाइक यूजर यूटिलिटी एप्लीकेशन। कि हम कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसके अंदर आती है। इसमें सीडी प्रॉक है, लिटिल प्रॉक बेसिकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन रखता है, जितनी भी सारी पीआईडी वगैरह क्या क्या चल रही हैं आपकी शेयर सिस्टम के लिए, कितने सारे एप्लीकेशंस हमारे करंटली रनिंग हैं, तो वो सारी पीआईडी वगैरह की इंफॉर्मेशन रखता है। तो दिस इज द डायरेक्टरी, और मेन डायरेक्टरी है हमारी स्लैश, दिस वन इज एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड दैट। अगर हम इसको ls करते हैं तो एवरी डायरेक्टरी इनसाइड दैट, चाहे बिन, बूट, etc, होम। तो अगर हमारी स्लैश डायरेक्टरी पे कुछ हैपन होता है या हम RF हाइपन RF चला देते हैं, तो हमारी कोई रिकवरी नहीं मिलती कि एवरीथिंग विल बी क्रैश, क्योंकि सब कुछ होम डायरेक्टरी के अंदर ही होता है, स्लैश सीडी स्लैश के अंदर होता है। अगर pw चलाएंगे तो ये स्लैश जो आ रहा है, दिस इज द रूट डायरेक्टरी। तो टीम, किसी का कोई क्वेश्चन है और वी विल गो हेड। एक बेसिक क्वेश्चन था राकेश, सेकंड स्लाइड में लिनक्स बूट प्रोसेस एक्सप्लेन किया आपने, तो कर्नल और ग्रब दो पैरामीटर थे, तो उन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है कर्नल और ग्रब में? कर्नल इज बेसिकली एप्लीकेशन है लिनक्स का, जो हमारे पूरा जो कम्युनिकेट करता है वो ग्रब से कम्युनिकेट करता है और सिस्टम को माउंट करता है। और ग्रब इज बेसिकली यूज फॉर लाइनक्स का जो कर्नल है, इट्स अपलोड इन द मेमोरी। वो सिर्फ मेमोरी में अपलोड, उसने कर्नल को अपलोड कर दिया, लेकिन कर्नल क्या करता है, कर्नल आपके जो भी माउंट सिस्टम है, जो स्लैश रूट है, उसको माउंट करता है, और इनिशियल लेवल पे जो भी प्रोसेस चाहिए, लाइक कोई भी सिस्टम इंफॉर्मेशन, कोई भी सिस्टम डी उसे रन करनी है उस टाइम पे, बूट टाइम पे, तो वो उसको कमांड देता है कि आप इनिशियल कर सकते हो। बैकएंड में उसने सारा कुछ चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, आप सर्विस एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो क्योंकि समटाइम्स वीएम वगैरह क्रैश होती है तो कर्नल पे ही आता है आरएनडी का पार्ट जो होता है। हाँ, कर्नल पैनिक होता है, कर्नल क्रैश हो जाता है, कई प्रॉब्लम जब भी यस आती है जब हम बूट सिस्टम को, जब कर्नल को अपग्रेड वगैरह कर, कर्नल इज मेन थिंग यस जो हमारे बेसिकली हार्डवेयर से और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, दैट इज द ओके मीडिएटर। ओके हाँ, तो वो अगर पैनिक होता है तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम बूट नहीं होगा और वो प्रॉब्लम करेगा। तब हम आगे हम आते हैं, वहां पे रन लेवल पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको ट्रबल शूट करते हैं। जैसे कि हमारा विंडोज में होता है ना, सेफ मोड, सिंगल यूजर, यू विल यस बूट द मशीन विदाउट नेटवर्क, की ठीक है नेटवर्क में नहीं जाए मशीन, जिससे कि कोई वायरस वगैरह आया तो इम्पैक्ट ना करो अदर एप्लीकेशन के लिए। तो हम रन ओके लेवल स्लैश इज फॉर रन लेवल ओनली। तो दिस इज द बेसिकली रन लेवल कि हम कैसे मशीन ये वर्क करती है और हम कैसे इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है। तो पहला रन लेवल है हॉल्ट एंड पावर ऑफ। लाइक हमें मशीन को पावर ऑफ करना है, तो हम बेसिकली जीरो का यूज करते हैं। जैसे पावर ऑफ कमांड चलाते हैं तो रन लेवल जीरो हिट होता है और हमारी मशीन पावर ऑफ हो जाती है। सेकंड टारगेट है कि सिंगल यूजर रिसोर्स मोड, यानी कि हमें सिंगल यूजर मोड में अगर मशीन को बूट करना है, देन वी नीड टू सेट द पावर मोड एज 1। मल्टी यूजर है, पावर मोड क्या है? इट्स रनलेबल मोड। लाइक रनलेबल मोड मींस कि जो हमारा उसमें होता है ना, विंडोज में आपने सेफ मोड, सिंगल यूजर हाँ मोड हाँ सुना होगा आई थिंक, वो हाँ सेम हाँ। थिंग सेम थिंग आज हियर। तो इसको किस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आता है? यहाँ पे पहले हम इसको सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट करेंगे ना, आई विल शो यू दैट थिंग। हम्म, गेट डिफॉल्ट तो अभी हमारा क्या है, ग्राफिकल मोड है, यानी कि हम क्या है, हमारा ग्राफिकल टारगेट 5 एक्टिवेटेड विद मल्टी यूजर, ये हमारा ओके। ग्राफिक है यहाँ पे। हाँ, हाँ जी। अगर हम इसको किसी और मोड में चलेंगे तो हमें यहाँ पे सिस्टम सीटीएल आइसोलेट मल्टी यूजर टारगेट, यहाँ पे हमें वो कमांड चलानी पड़ेगी, जैसे ओके। सिस्टम सीटीएल
आइसोलेट, और हमें वहां पे टारगेट का नाम देना पड़ेगा। जो टारगेट एक्टिवेट करेंगे उसके बाद जैसे ही मशीन को रिबूट करेंगे वो उसी टारगेट में चली जाएगी मशीन। ठीक। हाँ, और अगर मल्टी यूजर करना है, नो जीयूआई, तो वहां पे हमें जीयूआई नहीं मिलेगा। अभी हमारा डेस्कटॉप है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, बट जीयूआई नहीं मिलेगा, ओनली कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा, हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। 5 होता है आपका ग्राफिकल इंटरफेस, जो हमें डेस्कटॉप मिलता है, डेस्कटॉप की तरह एनवायरनमेंट मिलता है, Ubuntu का हो या विंडोज का हो, उसका लिनक्स का हो, जिसपे हम ग्राफिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बट हमारे सर्वर मोस्ट प्रोबेबली वो होते हैं आपके मल्टी यूजर नो जीयूआई पे ही होते हैं, क्योंकि वहां पे हमें ग्राफिक की जरूरत नहीं होती है। एवरीथिंग विल बी रन बाय द कमांड ओनली। एंड लास्ट टारगेट इज 6 इज फॉर रिबूट, लाइक वी विल रन दिस कमांड init 6। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे हमारी मशीन ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम init 5 कर देंगे तो मल्टी यूजर विद जीआई हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, उस केस में हमें बेसिकली फोर्स करना पड़ेगा init 6 और पावर होल्ड। ये हमारी डिफॉल्ट रखी गई है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फ्रिक्वेंटली वी आर यूजिंग इट। बट अदर में तो हम बहुत रेयर चांस में जाते हैं जब हमें मशीन को ट्रबल शूट करना हो या फिर हमें चेंज करना हो, तो उस केस में हम उसको चेंज करते हैं। तो पहले हमें सिस्टम से आइसोलेट करना पड़ेगा उसको, टारगेट को, देन वी नीड टू रिबूट द सिस्टम। नहीं, यहाँ पे आपने जैसे init 6 किया, ठीक है, तो हमको रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए हम हाँ, init 1 करते हैं नहीं तो उसमें नहीं जाए, वो उसमें मैं बताने की सिंगल हाँ यूजर उसमें नहीं आएगा। हाँ, ये बेसिकली फ्रिक्वेंट यूज के लिए init 6 और पावर ऑफ। अदर जो ओके। टारगेट है वो हाँ बेसिकली जी। हमें हाँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि हमें ट्रबल शूट करनी है मशीन या कुछ रीजन है, देन वी हैव टू मूव दैट। अच्छा, बेसिकली वो init कमांड से हम जा सकते हैं किसी हाँ भी हाँ, मोड में। ठीक है, ओके, ठीक है। तो दिस इज द रन लेवल। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ सेल विल इंटरेक्ट विद माय मशीन। सो बेसिकली ये है कमांड, जैसे wget है, cat है, bi, अगर हम यहाँ पे कोई रन करते हैं कमांड, सो डेफिनेटली इट विल टारगेट टू एनी बैश। बैश इज द मीडिएटर टू कम्युनिकेट विद यूजर टू मशीन। इसमें मल्टीपल बैश होती है, लाइक बैश होती है, एसएच भी होती है, जेड भी होती है, सीएसएच भी होती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वी हैव टू रन दिस यहाँ पे चलाते हैं, तो अभी हमारी जो डिफॉल्ट एक्टिवेट है वो बैश एक्टिवेटेड है। तो अगर हम यहाँ पे कोई कैट कमांड चलाते हैं तो इस तरीके से प्रोसेस करती है। लेलएस ये यूटिलिटी है, ये बेसिकली किसी केएस जो भी यूज होगी, डिफरेंट डिफरेंट हम सेट भी कर सकते हैं इसमें, बट ये डिफॉल्ट भी कहीं यूज होती है अलग अलग। तो जो कोई भी कमांड रन करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है, वो कर्नल को कॉल करती है, कर्नल हार्डवेयर को कॉल करता है, और हार्डवेयर उसी की तरह से हमें रिस्पॉन्स आउटपुट देता है इन द सेम वे। लाइक वी हैव टू रन दिस cat etc pwd, हमने ऐड किया तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल गया, बट इट विल फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस। ये पहले सेल को इसने बोला कि ठीक है, हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की है, रिक्वायर द आउटपुट। सेल ने कर्नल से कम्युनिकेट किया, कर्नल ने हार्डवेयर से कम्युनिकेट किया, देन इट विल गिव द आउटपुट कि ठीक है, ये इन्होंने जो एल ऐड किया वो पास डब्ल्यू को ऐड किया, आई नीड टू शो द आउटपुट की उसके अंदर क्या क्या है। तो उसने आउटपुट हमें दे दिया। तो इस तरीके से सेल विल कम्युनिकेट। ओके। Next, today we'll cover some basic commands, and from tomorrow we will go for next session. We will go in a deep. नेक्स्ट सेशन कब का प्लान किया है आपने? Every week is the one session. एवरी वीक ट्यूसडे? हाँ, Tuesday. ठीक है जी, ठीक है, ओके। So first command is the pwd. Pwd is showing present working directory. It means कि it's showing that कि हम अभी किस डायरेक्टरी पे है। लाइक हमने cd करके होम के अंदर चले गए, यहाँ पे रन की pwd, तो हमें ये दिखा रहा है कि हम होम के अंदर है। तो it's showing only the present
वर्किंग डायरेक्टरी की, हम किस डायरेक्टरी के अंदर अभी हैं अवेलेबल। ls इज फॉर लॉन्ग लिस्ट, इट्स शोइंग कि उस डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। लाइक हम अभी होम के अंदर UIPL हमारा यूजर है, UIPL के अंदर हम चले जाते हैं, UIPL के अंदर हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। अब यहाँ डेस्कटॉप पे ls करते हैं तो ये हमारी सारी फाइलें अवेलेबल हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये सारी फाइलें हमारी डेस्कटॉप के अंदर अवेलेबल है। तो लॉन्ग लिस्ट बेसिकली ये दिखाता है कि लिस्ट ऑफ कंटेंट की डायरेक्टरी के अंदर क्या फाइल है, क्या फोल्डर्स अवेलेबल है। और ये कलर का क्या रोल होता है राकेश? कलर इन द सेंस मल्टीपल अच्छा, कलर आते हैं ना। ओके, इट्स शोइंग कि इट्स सिंपल थिंग, दिस इज द फाइल, इट्स रेड इट मींस कि ये जिप फाइल है, ग्रीन मींस कि ये डायरेक्टरी है। ओके डायरेक्टरी के अंदर हम cd करके जा सकते हैं, जैसे कि ये नवेंटिक है, नवेंटिक के अंदर हम जा सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नवेंटिक के अंदर क्या क्या पड़ा है, क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं ls करके। ओके दिस इज द कर्ल कॉम्बिनेशन बेसिकली। और ये सिंपल फाइल है, इनको हम cd करके नहीं जा सकते, बट हम कैट कर सकते हैं कि इनके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। ओके ओके यहाँ और कलर भी चेंज होता है, वो डिपेंड करता है, ये देखो इसमें जेपीजी फाइल है तो उसने और कलर दे दिया है यहाँ पे। ओके दिस इज द थिंग। हाँ राकेश, इसमें ये .pdf और .jpeg फाइल जो है इनको हम लिनक्स में ओपन कर सकते हैं? लिनक्स में ओपन बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हमें उनको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी जिप फाइल है ना, तो उसको पहले अनजिप करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं जिप का तो समझ गया मैं, जिप को अनजिप करके देन उसको हम उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हैं, राइट बट राइट, जो इसके लिए पीडीएफ और अपना जेपैग के लिए कैसे मतलब करना होगा कुछ, या आगे फ्यूचर पीडीएफ में नेक्स्ट क्लास में आप बताओ। पीडीएफ देखो, इस पे हम पीडीएफ के लिए वैसे कि हमारा अगर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हमारा अभी है तो हम जाके डायरेक्ट पीडीएफ देख सकते हैं। ऑल्सो यू दैट थिंग इज, जैसे हम विंडोज में करते हैं वैसे देख सकते हैं, और कैट करके तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ना टेक्स्ट फाइल ही देख सकते हैं, क्योंकि अदर थिंग्स इज नॉट सपोर्टेड, ये देगा, ये इस तरह से देगा तो आपको नहीं समझ में आएगा इसके अंदर क्या है। बट अगर हाँ हम वही इसको वही कह रहा हाँ था कि मैं मतलब अपना लाइक आपने तो अभी ये उबुंटू वैसे ले रखे जिसमें हमारा डेस्कटॉप भी विजिबल होता है, बट अगर मैं एज्योर की बात करता हूँ, एज्योर AWS की, तो वहां पर हमारा ऐसा डेस्कटॉप नहीं आता ना लिनक्स का किसी का भी, किसी भी फ्लेवर का, तो वहां पे हमें पीडीएफ फाइलें जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास टेक्स्ट फाइलें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मेरा दिख रहा होगा, अब यहाँ पे एक्चुअली मेरा डेस्कटॉप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम कोई भी फाइल पीडीएफ फाइल वगैरह कोई भी हम ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे हमारे पास अगर डेस्कटॉप लेवल की चीजें है ना, यहाँ पे तो हम इमेज भी ओपन कर लेंगे, कुछ भी ओपन कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही होती है लैपटॉप, वो वहाँ पे सर्वर पे हम कभी पीडीएफ वगैरह ओपन नहीं कर सकते। हम क्या मोस्ट ऑफली सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो भी फाइल्स अवेलेबल होती हैं वो सिर्फ आपकी नॉर्मल फाइलें होती हैं, वो कभी भी आपकी पीडीएफ और किसी और फॉर्मेट में नहीं होती है। ठीक पीडीएफ है और मैं समझ गया, बट हाँ, इन केस इन फ्यूचर कुछ हमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो तो उस केस में हम ऐसा कुछ। डाउनलोड करके किसी कहीं और पे ओपन कर सकते हैं, लाइक हमने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया, और लैपटॉप पे डाउनलोड करने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है। बट ये जो ठीक है। पीडीएफ वगैरह ओपन करना ना, ये दिस इज द यूजर लेवल टास्क, क्लाइंट लेवल टास्क है, कभी भी सर्वर लेवल पे पीडीएफ और अदर थिंग नहीं, वो केवल हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन की वो टीएक्सटी फाइल ही होती है मोस्ट प्रोबेबली, कॉन्फ़िग फाइल होगी, CUNF होगी, या फिर जो भी एक्सटेंशन होगा वो डिपेंड करेगा कि सर्वर क्या सपोर्ट करता है किस फाइल के लिए, वो ही होगा सर्वर लेवल। ठीक, ओके। हाँ, क्योंकि ये मैं अपना डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे पीडीएफ और अदर दिख रही है, सर्वर लेवल पे नहीं होंगी ऐसी कुछ। यहाँ पे ls-al होती है एक कमांड, इस पे हमारी हिडन फाइल भी दिखती है, हिडन फाइल जो क्रिएट होती है वो डॉट नाम से होती है, जैसे ये डॉट है, जैसे हमने कोई फाइल कर ली यहाँ पे डॉट टेस्ट, अब हम ls करेंगे तो हमारी डॉट डॉट टेस्ट नहीं दिखेगी, रीजन इज दैट कि उसमें हमने आगे डॉट लगा दिया तो वो हिडन फाइल है, तो वही नहीं दिखेगी। अगर हमें देखनी है
ls करेंगे तो हमें वो डॉट वाली हिडन फाइल नहीं दिखेगी। जैसे ही हम ls -al करेंगे तो हमारी वो हिडन फाइल विजिबल होगी। ये दिस वन, ऊपर वाले में आउटपुट नहीं है, ऊपर वाले में ये 2 डॉट फाइलें भी नहीं दिख रही हैं जो प्रोफाइल फाइलें होती हैं बेसिकली, तो ये भी नहीं दिख रही है। तो हिडन फाइल देखने के लिए हम लॉन्ग लिस्ट -a लगाते हैं, a और l अगेन फॉर लिस्ट। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में बहुत सारी फाइलें होती हैं .htaccess और अदर फाइल, तो उसको देखने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं ls-al। आप नोट कर लेना, ये कमांड है, आप प्रैक्टिस करोगे। वैसे बेसिक हैं, आपको ऑलरेडी आती होंगी, बट फिर भी अगर नहीं है तो आप नोट कर लेना, प्रैक्टिस करोगे। इसमें बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है cd। cd इज बेसिकली यूज फॉर चेंज डायरेक्टरी। लाइक हमें कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है, लाइक हम अभी UIPL के अंदर हैं, हमें वापस होम के अंदर आना है, तो cd डॉट डॉट हम एक स्टेप बाहर आ गए। अगर हमें दोबारा UIPL के अंदर जाना है तो cd और उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, तो हम उसके अंदर दोबारा आ जाएंगे। ls करेंगे, उसके अंदर का कंटेंट दिख जाएगा, cd डॉट डॉट करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, हम बाहर आ गए, हमें यहाँ पे फोल्डर देखने लगेगा कि हम इसके अंदर नहीं है, इसके एक स्टेप बाहर है। यहाँ से हम किसी भी डायरेक्टरी को cd करके जा सकते हैं। लाइक हमें etc के अंदर जाना है तो यहाँ से हम /etc के अंदर भी जा सकते हैं। इसमें 2 तरीके का पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। रिलेटिव पाथ का मतलब है कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है, तो हम cd और सिर्फ उस डायरेक्टरी का नाम देंगे। जैसे लोकल टाइम है, आई थिंक फाइल log cd log check, ये डायरेक्टरी के अंदर हम डायरेक्ट आ गए। अगर हमें एब्सोल्यूट पाथ के अंदर जाना तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। पहले स्लैश आएगा, स्लैश इन द रूट डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर हमें किसके अंदर जाना है, होम के अंदर जाना है। होम के अंदर क्या है, UIPL के अंदर जाना है। UIPL के अंदर हमें डेस्कटॉप की फाइलें चेक करनी है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या है, तो हम ऐसे जा सकते हैं उस पाथ को देखने। यहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन टीम? नेक्स्ट, डेट इज बेसिकली यूज फॉर चेक द डेट। तो वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में भी दिखाएंगे कि कैसे डेट को चेक करते, चेंज करते हैं, या फिर कोई यूजर एक्सपायर हो जाता है तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख सकते हैं कि वो एक्सपायर है या कुछ और इश्यूज हैं। तो अभी हम सिंपल पे चलते हैं। तो डेट इज यूज फॉर चेक द डेट, कि हमारे सिस्टम में भी करंट क्या डेट है, क्या टाइम है, एवरीथिंग विल बी चेक इट। अगर touch is used for create a file, like अभी हम किसी टेस्ट डायरेक्टरी में चले जाते हैं, ये बना लेते हैं mkdir डेमो, इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई फाइल बनानी है, लाइक touch demo.txt, तो हमारी ये फाइल बन जाएगी। demo.txt हमारी फाइल बन गई। ये टच से भी बना सकते हैं, ये हम कैट से भी बना सकते हैं। वो सॉरी, कैट नहीं, BIM, कैट इज फॉर ओनली शोइंग क्या डेटा है, BIM से भी हम demo1.txt करेंगे। डेमो BIS बनाने से फायदा है कि हम वन टाइम में कोई कंटेंट भी हम उसमें डाल सकते हैं, बट टच से क्या होगा कि ओनली ब्लैंक फाइल क्रिएट होगी, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं होगा। लाइक हम अभी दिखा देते हैं आपको, डेमो demo.txt, ये हमने टच से क्रिएट की थी, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, बट BIM से हमने क्रिएट की थी। वहां पे आपको दिखा देगा कि इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट भी इंसर्ट किया था, XYZ जो भी है वो। अभी नैनो और विम का बता दो डिफरेंस। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग विम यूज करते हैं, वो हम आगे उसका डिफरेंशिएट देख लेंगे, आगे हम उसको लेंगे एक नेक्स्ट सेशन में।
हाँ वो बिम में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हाँ हम है, वो डिटेल तो में होती है, लेंगे। दोनों उसके लिए होती है। हाँ नैनो में हाँ थोड़ा हाँ सा बस सेव करने का और एग्जिट करने का क्राइटेरिया थोड़ा हाँ डिफरेंट हाँ होता है ना नैनो में। वो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि हम नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, आप सबलाइम हम्म। यूज कर रहे हो, दैट इज द टेक्स्ट एडिटर और कुछ नहीं है, वो किसको हैंडी है क्या वो Right. डिपेंड करता है। हाँ दैट इज द थिंग। और ये जो अभी आपने बताया था एब्सोल्यूट पाथ वाला, तो एब्सोल्यूट पाथ तो जब भी काम करेगा ना जब हम उस डायरेक्टरी में हैं ऑलरेडी, उसमें हमें हाँ किसी और राइट डायरेक्टरी में जाना है। राइट राइट अदरवाइज राइट। रिलेटिव पाथ ही काम करता है। हाँ रिलेटिव पाथ का मतलब है कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर हैं, उसी डायरेक्टरी के अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम सीडी करके चले जाए। एब्सोल्यूट पाथ का एब्सोल्यूट मतलब पाथ में है, हाँ हाँ हाँ। कि मान लो हम होम के अंदर बैठे, हमें ईटीसी जी। के अंदर जाना है या बिन के अंदर जाना है, तो हमें वहां पर पूरा पाथ देना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर जाना है। क्या। देन वी हैव टू डिफाइन द पाथ एंड देन गो। हाँ ठीक है। हाँ हम थे सीपी। यहाँ पे बनाते हैं हम एक डायरेक्टरी इनके या डेमो या डेमो 3 ईडी। चलते हैं डेमो के अंदर टच टच। तो हमने डेमो 2 के अंदर एक डायरेक्ट एक टेस्ट फाइल बनाई है टेस्ट 1 के नाम से, हमें इसको मूव करना है डेमो 3 के अंदर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सीपी। यहाँ पे हमारा ये रिलेटिव पाथ है तो हम टैब मार के भी जा सकते हैं टेस्ट, और इसके आगे हम यहाँ पे दूसरा फोल्डर है हमारा डेमो 2। डेमो 2 को हमें पाथ देना पड़ेगा, हमें होम यूआईपीएल डेस्कटॉप के अंदर डेमो, और डेमो के अंदर है हमारा डेमो 3। हमें डेमो 3 के अंदर फाइल को कॉपी करना है, तो हमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ा कि ठीक है डेमो 3 के अंदर हमने फाइल कॉपी कर दी। अब हम चलते हैं एक स्टेप बाहर आते हैं डेमो 2 से और यहाँ पे एलएस करते हैं और वी विल गो इनसाइड द डेमो 3। डेमो 3 तो यहाँ पे हमारी वो फाइल कॉपी होगी, वहां से यहाँ पे कॉपी होगी। तो बेसिकली दिस इज द सीपी कमांड। अब हम एमबी की बात करते हैं। एमबी इज द मूव, यानी कि ये फाइल हमारी दोनों प्लेसेस पे होगी, डेमो 2 में भी है और डेमो 3 में भी है, बट एमबी विल रिप्लेस इट, कि एमबी तो मूव करेगी फाइल को। अगर हम यहाँ से इसको मूव कराते हैं स्लैश होम यूआईपीएल डेस्कटॉप डेमो, हम इसको डेमो के अंदर मूव करा देते हैं, तो अगर हम इसको एलएस करेंगे तो वो फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, बट हमारी कहाँ अवेलेबल होगी, डेमो के अंदर अवेलेबल होगी, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे कॉपी किया है, ये टेस्ट 1। So basically, this is for copy and difference between CP and move command. Now it's the RM. RM is used for the remove file and directory. अगर हमें कुछ फाइल या डायरेक्टरी रिमूव करनी है, लाइक हमें डेमो 3 वाली डायरेक्टरी रिमूव करनी है, देन डायरेक्टरी के लिए तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको, हाइफन कुछ डी ऐड करना पड़ता है या कुछ ये करना पड़ता हाँ डायरेक्टरी के लिए आई थिंक कुछ फ्लैग है, I'll check it। है। नहीं लैग नहीं है, डायरेक्टरी के लिए आरएम के साथ एक हाइफन डी लगता है, वो लगता है एक सब कुछ। और डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो ऐसा हो हाँ सकता है। डायरेक्ट डेमो 3, हाँ दिस वन, हाँ हाँ जी करेक्ट हाँ जी, करेक्ट, हाँ। ये रिमूव हो गया। सो दिस इज फॉर डिलीटिंग। कैट इज हमने लास्ट सेक्शन किया था, कैट इज ओनली फॉर शो द कंटेंट डेमो 1.txt। इसके अंदर जो भी कंटेंट हो, किसी फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट हमें देखना है तो देन वी हैव टू चेक बाय द कैट कमांड। एंड मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। एक्चुअली हम ये बता रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली यूज हो रहा है, बट डिटेल में अगर किसी कमांड को देखना है कि वो क्या क्या फंक्शनलिटी कर सकती है, तो वी विल यूज द मैन कमांड एंड वी विल यूज ऑल दिस फ्लैग in detail. Display the type character, sequence repeated empty. So it giving the more things, more and more things related to file। किसी भी हमें फाइल के किसी और डिटेल में जाना, लाइक PIM, तो it giving lot of options is available, view,
It's flag T. You can file edit initial cursor position depends stack. So if your view compliance this B4 binary mode, C4 compatible, D4. So किसी भी कमांड को मोर पावरफुल बनाने के लिए यू विल यूज द मेन कमांड एंड अरे वहीं रखो तो यूज दैट फ्लैग. So main is just showing the manual of the command कि any command में क्या क्या possibilities features हैं. So you will check in detail and deep dive. Next is who. Who is basically used for check कि you are login from which server and from what time. We have login this machine on this machine for this time, and we have taken this PTS session of the root user because अभी हम root user से login है. This session is taken by the root user, so it's showing कि 27:10 को हमने इतने बजे session लिया था. तो it's saying the information कि किस यूजर से लॉगिन है और किस टाइम हमने इसको लॉगिन किया. तो it's showing the all information. History is very important command. It's showing the complete history कि हमने क्या क्या कमांड्स रन की हैं. लाइक कोई सर्वर पे कोई कमांड्स रन करके चला जाता है, किसी ने rm-rf कुछ डिलीट कर दिया. So we will identify it कि हम किस यूजर ने क्या क्या कमांड्स रन की हैं. तो it's showing the complete list of commands. जब तक कि आपने हिस्ट्री क्लियर नहीं की होगी तब तक की सारी कमांड्स आपको शो कर देगा. हिस्ट्री सी से आप क्लियर भी कर सकते हो हिस्ट्री के लिए, बट वो नहीं करते. रीजन इज दैट कि अगर सर्वर पे कोई रन करके चला गया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो हिस्ट्री हम रिस्ट्रिक्ट करके भी रखते हैं. कुछ कहीं पे सिक्योरिटी पोस्चर इश्यूज होते हैं तो वहां पे हिस्ट्री क्लियर कमांड हम रिस्ट्रिक्ट करके भी रखते हैं उस केस में. अरे भाई तो राकेश कोई लिमिटेशन होती है क्या कि 200 या 500 ही शो कर सकता है या कंप्लीट जैसे कि 1 डे या 1 वीक? I think 233 history is completely showing, but ऐसी कोई लिमिट शो नहीं होती है. मे बी लाइन्स ऑफ लिमिट्स हो इसकी कि ठीक है, क्योंकि बेसिकली आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना वन टाइम में शो कर सकता है. तो डिपेंड ऑन दैट. लेट मी चेक कुछ हिस्ट्री होती है. It's depend on echo dollar. Sorry, dollar, not this dollar. Okay. Yes. It's depend on history file size. इसके अंदर ये फाइल है, ये इसके अंदर फाइल साइज के लिए history file size 200. I think max entry will be the 2000. So this is the limit mentioned. So अगर 2000 लाइंस ना? हाँ लाइन्स. अगर ये हमारी हिस्ट्री है तो हम शायद इसको ना बड़ा और कम भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट. और बेसिकली ये जो फाइल है इट्स डिपेंड ऑन इट सेव द ऑल हिस्ट्री इन दैट फाइल ओनली. ओके. रूट डॉट, क्योंकि वी आर यूजिंग द रूट यूजर हियर तो इट सेव द रूट यूजर. बट डिपेंड करता है आप किस यूजर से लॉगिन है तो उसी की बेस्ट अंडरस्कोर हिस्ट्री में ही सारी चीजें सेव करता है. जितनी भी हम कमांड वगैरह रन करते हैं वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट बेस पे हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं ना 2000 की. हाँ डेफिनेटली. यहाँ पे फाइल अवेलेबल है तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉसिबल है कि हम उसको बड़ा और कम भी कर सकते हैं. ओके ओके. तो टुडे सेशन में इतना ही था. किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. बाद बाकी प्रैक्टिस करना और जो मेन वाली कमांड है उससे आपको और एक्सप्लोर करना डिटेल में कमांड्स.
So you will explore the more feature की और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्ले कर सकते हैं with this command. ओके राकेश आप ये स्लाइड भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं उसी मेल पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उस लाइन, कोई प्रॉब्लम। ठीक, ओके।